سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں میجر اور حوالدار وطن پر قربان ہو گئے۔ ISPR نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع زوب کے علاقے سمبازا میں آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں کا بہادری اور جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے میجر سید علی رضا شاہ اور حوالدار نثار احمد وطن پر قربان ہو گئے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس پر سماعت آج پھر سے شروع ہو گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ سماعت کر رہا ہے، جو کہ براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی مخالفت میں درخواست گزاران کے دلائل مکمل ہو چکے، جبکہ حق میں دائر درخواست گزاران کے وکلاء کے دلائل جاری ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں آج فیصلہ سنائے جانے کا بھی امکان ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے چیئرمین PTI کی بیٹوں سے فون پر بات کروانے سے انکار کر دیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم سے اڈیالہ جیل میں بیٹوں سے ٹیلی فوننگ ملاقات کروانے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں جواب جمع کروا دیا۔ جواب میں سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار نوجوان کی بیرون ملک ٹیلی فوننگ ملاقات کروانے کی اجازت نہیں۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے قیدیوں سے فون پر بات کروانے سے متعلق جیل SOPs طلب کر لیے۔ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت 17 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں اسحاق ڈار اور دیگر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت ہوئی۔ سابق وزیر خزانہ عدالت پیش نہ ہوئے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں اسحاق ڈار کے وکیل جبکہ نیب پروسیکیوٹر افضل قریشی پیش ہوئے۔ شریک ملزمان کے وکلاء نے 2 ماہ تک کیس ملتوی کرنے کی استدعا کر دی۔ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب جائز حقوق اور دریپا امن کے ساتھ حصول کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد نے فلسطین کے صدر محمود عباس کو ٹیلی فون کیا، جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان غزہ میں بڑھتی فوجی کشیدگی اور بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوران گفتگو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ عالمی اور علاقائی فریقین کے ساتھ رابطے کر کے کشیدگی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کمشنر لاہور کی ہدایات پر انسداد اسموک کے لیے لاہور سمیت پوری ڈویژن میں دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ دفعہ 144 نافذ ہونے کے بعد بغیر چھت ڈھانپے شہر سے گزرنے والی ٹرالیوں کے خلاف بھی کارروائیاں ہوگی، جبکہ میونسپل ویسٹ کی جانب سے ٹائرز، پولیتھین، سالٹ ویسٹ، ربر، لیدر کی اقسام کو جلانے پر قانونی کارروائی بھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلٹن کا آغاز کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں میجر اور حوالدار وطن پر قربان ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع زوب کے علاقے
संबाजा में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ है। फायरिंग के तबादले में 5 दहशत गर्द हलाक हो गए। दहशत गर्दों का बहादुरी और जवामर्दी से मुकाबला करते हुए मेजर सैयद अली रजा शाह और हवालदार निसार अहमद वतन अजीज पर कुर्बान हो गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में शहादत का रुतबा पाने वाले 31 साल मेजर अली रजा का ताल्लुक सरगोदा से था। शहीद मेजर अली रजा दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की क़यादत कर रहे थे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दहशत गर्दों के खिलाफ बेजगरी से लड़ते हुए हवालदार निसार अहमद ने भी जाम शहादत नोश किया। 38 साल शहीद हवालदार निसार अहमद का ताल्लुक विहाड़ी से था। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे बहादुर जवानों की मकरूज है। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस पर समाअत आज फिर से शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत कर रहा है, जो कि बराह रास्त नशर की जा रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुखालफत में दरख्वास्त गुजारान के दलाइल मुकम्मल हो चुके, जबकि हक में दायर दरख्वास्त गुजारान के वकला के दलाइल जारी हैं। अटॉर्नी जनरल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में आज फैसला सुनाए जाने का भी इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच अब तक 3 और लार्जर बेंच इस केस की 5 समातें कर चुका है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात करवाने से इनकार कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन PTI और साबिक वजीर आजम से अडयाला जेल में बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुलजमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक मुलाकात करवाने की इजाजत नहीं। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से कैदियों से फोन पर बात करवाने से मुतल्लिक जेल SOPs तलब कर लिए हैं। जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने 18 अक्टूबर तक सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को SOPs जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात करवाने से इनकार कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI और साबिक वजीर आजम से अडयाला जेल में बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुलजमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक मुलाकात करवाने की इजाजत नहीं। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से कैदियों से फोन पर बात करवाने से मुतल्लिक जेल SOPs तलब कर लिए हैं। जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने 18 अक्टूबर तक सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को SOPs जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इसहाक डार और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत हुई। साबिक वजीर खजाना अदालत पेश न हुए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में इसहाक डार के वकील जबकि नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी पेश हुए। शरीक मुलजमान के वकला ने 2 माह तक केस मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने कहा कि ये रेफरेंस लाहौर रीजन का बनता है। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि ये रेफरेंस इससे कबल बंद हो गया था। बाद में जज मोहम्मद बशीर ने आइंदा समाअत पर एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दलाइल तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। फलस्तीन और इसराइल में लड़ाई चौथे रोज भी जारी है। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 तक पहुंच गई, जबकि 2741 जख्मी हैं। सैकड़ों इसराइली शहरी और अहलकार भी यरगमाल बना लिए हैं। इसराइली फौज ने भी गजा में फजाई हमले बढ़ा दिए। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी के नतीजे में 704 फलस्तीनी शहीद और 4000 से जायद जख्मी हुए, जिनमें
143 बच्चे और 105 खवातीन भी शामिल है। हमलों के बाद 1,23,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। इसराइल फोर्सेस बम्बों का इस्तेमाल करके आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाता रहा है। गजा में पनाह गुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया गया। फिजाई हमलों से कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल ने गजा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा करके नई चौकियां कायम कर दी, जिन पर 3 लाख इसराइली फौजाम नस्ब कर दिया। लेबनान सरहद पर भी 1 लाख इसराइली फौजी भेजे गए हैं। इसराइली वजीर दिफा योएव गिलॉन्ट का कहना है कि जंग के असूल बदल गए हैं। हमास इसराइल पर हमले के बाद 50 साल तक पिछताएगी। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा है कि सऊदी अरब जायज हकूक और देरपा अमन के हसूल के लिए फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा में बढ़ती फौजी कशीदगी और बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। दौरान गुफ्तगू सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा कि आलमी और इलाकाई फ्रीकैन के साथ राब्ते करके कुशीदगी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमें फलस्तीनियों की जिंदगी को आसान बनाने की जरूरत है। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने मिस्री सदर अब्दुल फतह और उर्दन के शाह अब्दुल दोम से भी टेलीफोनिक राब्ता करके इसराइल फलस्तीन तनाज़े से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया। लाहौर समेत डिवीजन भर में इंसदाद स्मोक के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर इंसदाद स्मोक के लिए लाहौर समेत पूरी डिवीजन में दफा 144 नाफिज की गई। दफा 144 नाफिज होने के बाद बगैर छत ढांपे शहर से गुजरने वाली ट्रॉलियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जबकि म्यूनिसिपल वेस्ट की जानिब से टायर्स, पॉलिथिन, सॉल्ट वेस्ट, रबर, लेदर की इकसाम को जलाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। दफा 144 के तहत फसलों की बाकियात जलाने पर मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर में दफा 144 नाफिज की गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के पास ज़हनी बीमारियों से निपटने के लिए महदूद वसाइल हैं। ज़हनी सेहत के आलमी दिन पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पैगाम जारी करते हुए कहा कि ये दिन ज़हनी सेहत की अहमियत, ज़हनी अमराज के लोगों पर पड़ने वाले असरात को उजागर करता है। ये दिन ऐसे अफराद के खानदान की जानिब से मदद की जरूरत को उजागर करता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक के मुताबिक पाकिस्तान में 24% लोग ज़हनी दबाव का शिकार हैं। मुआशी परेशानियों से मुल्क में ज़हनी सेहत की गंभीर सूरत हाल और भी संगीन होती जाती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के पास ज़हनी बीमारियों से निपटने के लिए महदूद इंसानी और मादी वसाइल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नफ्सियाती बीमारियों से बच्चों, नौजवानों और खवातीन की एक बढ़ती हुई तादाद मुतासर हो रही है। आए रोज नफ्सियाती मसाइल की वजह से खुदकुशियों, घरेलू नाचाकियों, तशद्दुद और कत्ल के वाकयात रिपोर्ट होते हैं। हमें ज़हनी सेहत के ऑनलाइन पोर्टल्स, वर्चुअल प्रोग्राम्स, मसनूई ज़हानत, दिमागी सेहत के चैट बोट्स दरकार हैं। आरिफ अलवी ने कहा कि ज्यादातर ज़हनी बीमारियों का इलाज इब्तदाई मरहले में तशखीस और इलाज की वजह से कम कीमत में किया जा सकता है। लोगों को ज़हनी सेहत के मसाइल के बारे में मुशावरत फराहम करने के लिए टेली हेल्थ सेंटर्स भी कायम किए जा रहे हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बाबर सरफराज के हुक्म पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की 3 माह की कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे महमूद बेग।
रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखपुरा बाबर सरफराज अल्पा के स्पेशल टास्क पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा जाहिद नवाज मरवत की सरबराही में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी मुतअद्दिद अंधे कत्ल ट्रेस दर्जनों अगवा बराए तावान व अगवा शुदा मगवियान को बाहिफाजत बाद याब करवाने नाजायज असला मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ दर्जनों डकैत चोर गैंग्स को गिरफ्तार करके इनसे 22 करोड़ रुपए मालियत का माल मसरूका, जिसमें नकदी रकम, कारें, मोटरसाइकिलें, रक्शे, कीमती सामान और लोड दीगर व्हीकल्स, माल मवेशी, कीमती मोबाइल फोन्स, तलाई जेवरात और दीगर घरेलू सामान बरामद करके डीपीओ ऑफिस में बुलाए गए मुद्दईयान के हवाला कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर बाबर सरफराज अल्पा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये 135 साइकिल इन्होंने रिकवर, हम इंशाल्लाह आपका केस नंबर भी नोट करते हैं। केस नंबर तो सारे ही नोट हैं, जितने भी दर्ज हैं वो तमाम हमारे लिए जिम्मेदारी है। हम कोशिश करेंगे कि अगली दफा जब मुलाकात हो तो आपको भी हैंड ओवर मोटरसाइकिल करें। को पुलिस की मदद की जरूरत होती है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए खिदमत मराकज कायम किए गए। खिदमत मराकज को जो दायरा कार है अब वो हम वसी करते जा रहे हैं हर सब डिवीजन में और जितना मैक्सिमम, ताकि अगर माना वाला जो से किसी ने आना है तो वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ना आए। गुज़श्ता 3 माह की शानदार कारकर्दगी पर जिला पुलिस के अफसरान व अहलकारान को नकद इनामात देने का ऐलान करते हुए कहा कि शेखपुरा पुलिस के अफसरान व मुलाजमान ने अपनी पेशा वराना महारत को भरूवे कर लाते हुए जदीद टेक्नोलॉजी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सराय आलमगीर के सरकारी स्कूलों को ताले लगा दिए गए। सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ टीचर्स का एहतजाज। बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल की जानिब से ताले लगाकर बच्चों को वापस भेज दिया गया। टीचरों का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी तरफ स्कूल बंद होने से तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। दूर दराज से आए तलबा स्कूल बंद देखकर मायूस वापस लौटने पर मजबूर होते रहे। चिश्तिया में थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कार्रवाइयों में मुतादिद मुनशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में मुनशियात भी बरामद कर ली गई। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं SHO फरियाद हुसैन जोया से के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिर उल हसन से। जी ताहिर, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। IG पंजाब की खसूसी हदायत के मुताबिक चिश्तिया थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। आदि मंशियात फरोशों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ करते हुए थाना सिटी बी डिवीजन के SHO फरियाद हुसैन जोया ने मुकदमा दर्ज करके भारी मिकदार में चर्स वगैरह बरामद करके उनको पाबंद सलासल किया है। अगर बताते चले तो थाना सिटी बी डिवीजन के कई ऐसे पोश इलाके हैं जहाँ पर मंशियात फरोशी का मकरूद धंधा जो है वो बड़ी दीदा दिलेरी के साथ किया जाता था, लेकिन अब जो है वो मंशियात पर काफ़ी कंट्रोल नजर आ रहा है। तो मेरे साथ थाना सिटी बी डिवीजन के SHO फरियाद हुसैन जोया से मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितने मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है और कितनी चर्स वगैरह बरामद करके उनके खिलाफ क्या क्या मजीद कार्रवाई की गई? जितने भी मंशियात फरोश थाना सिटी बी डिवीजन के इलाके में मंशियात का काम कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के खिलाफ कार्रवाइयाँ हम कर चुके हैं। और आपसे भी गुजारिश है कि अगर कोई दीगर शख्स इस मकरूह धंधे में मुलविस है तो उसकी निशानदेही की जाए ताकि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। आज भी हमने एक बदनाम ज़माना मंशियात फरोश उस्मान और बगड़ उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उससे चर्स बरामद किए 2460 ग्राम। उसका जिस्मानी रिमांड हासिल करके इंशाल्लाह मजीद उससे बरामदगी की जाएगी। इसके अलावा हम मंशियात के जो आदि ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हॉट स्पॉट थे जहाँ पे मंशियात के आदि अफराद बैठ के नशा करते थे, उन जगहों को हम साफ किया है और मंशियात के आदि लोगों को हॉस्पिटल में रिहेबिलिटेशन के लिए हॉस्पिटल में जमा करवाते हैं। आज़म बुलंद इसी तरह मंशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ हम जारी रखें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस के SHO फरियाद हुसैन जोया साहब की बात सुन, उनका कहना है कि जितने भी पोश इलाके थे वहाँ पर क्रैक डाउन करते हुए मुतअद्दिद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में चर्स वगैरह बरामद करके उनको पाबंद सलासल किया। और रिसेंटली उनका कहना है कि उस्मान और बगड़ से 2460 ग्राम भारी मिकदार में चर्स बरामद करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको भी हवालात में बंद किया। इसी तरह जितने भी सरगर्म थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और इंशाल्लाह IG पंजाब के खसूसी हुक्म के मुताबिक इसी तरह जराइम पेशा अफराद
सादिकाबाद में कच्चे के इलाके में डाकुओं का पुलिस कैंप और पुलिस वैन पर हमला, 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और डाकुओं के माबैन दो तरफा फायरिंग का तबादला भी जारी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सिंध के डाकुओं ने अपने साथियों का बदला लेने के लिए पुलिस मोबाइल को घात लगाकर निशाना बनाया। पुलिस कैंप पर हमले में रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया है। आपको बताएं कि सादिकाबाद में कच्चे के इलाके में डाकुओं का पुलिस कैंप और पुलिस वैन पर हमला, जिसकी जद में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और डाकुओं के माबैन दो तरफा फायरिंग का तबादला जारी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सिंध के डाकुओं ने अपने साथियों का बदला लेने के लिए पुलिस मोबाइल को घात लगाकर निशाना बनाया। पुलिस कैंप पर हमले में रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया है। खबर दे रहे हैं आपको सादिकाबाद से। सादिकाबाद में कच्चे के इलाके में डाकुओं का पुलिस कैंप और पुलिस वैन पर हमला, 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। सादिकाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे मौजूद है अली मेरानी। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में कच्चे के इलाके में डाकुओं का पुलिस कैंप और पुलिस वैन पर हमला, 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और डाकुओं के माबैन दो तरफा फायरिंग का तबादला जारी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सिंध के डाकुओं ने अपने साथियों का बदला लेने के लिए पुलिस मोबाइल को घात लगाकर निशाना बनाया, जबकि डाकुओं की जानिब से पुलिस कैंप पर हमले में रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। मसल्ला डाकुओं की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को तशवीशनाक हालत में तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 2 पुलिस एहलकारों को हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि जिला भर से पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान दो तरफा फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस मुकाबले के बैस गुड्डू रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अली मेरानी तफसीलात से आगाह करने के लिए। हाई कमिश्नर मलेशिया मोहम्मद अजहर मिजलान की ओकाड़ा नेमत क्लब में आमद। हाई कमिश्नर ने बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि मलेशिया और पाकिस्तान मुस्लिम दोस्त ममालिक है। मलेशिया और पाकिस्तान में आपस में कारोबार करने के बहुत से मौके हैं। मजीद देखिए अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। हाई कमिश्नर मलेशिया मोहम्मद अजहर बिन मजलान का उकाड़ा नेमत क्लब में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। साबिक मेंबर कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक जज की दावत पर हाई कमिश्नर मलेशिया मोहम्मद अजहर बिन मजलान ने उकाड़ा में मसरूफ दिन गुजारा। बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मलेशिया और पाकिस्तान मुस्लिम दोस्त ममालिक हैं, आपस में कारोबार करने के बहुत से मौके हैं। मलेशिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से बीफ इंपोर्ट किया जा रहा है। इसी तरह मलेशिया चिकन मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट कर रहा है। मलेशिया ये पाकिस्तान से भी कर सकता है। उकाड़ा में भी आलू, चावल, कपास जैसी चीजें मलेशिया इंपोर्ट की जा सकती हैं। मलेशिया की बिजनेस कम्युनिटी से कहूंगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन भी दी जा रही है। हाई कमिश्नर मलेशिया मोहम्मद अजहर बिन मजलान ने उकाड़ा की बिजनेस कम्युनिटी से कहा कि पाकिस्तान के लिए मलेशिया में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। मलेशिया में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के कैंपस हैं। मलेशिया में पढ़कर स्टूडेंट यूके की डिग्री ले सकता है। मलेशिया और पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक हैं, इनका माहौल एक जैसा है। मलेशिया में भी 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। हलाल फूड हर जगह दस्तयाब है। हाई कमिश्नर मलेशिया मोहम्मद अजहर बिन मजलान हफ्ता की शाम को उकाड़ा नेमत क्लब पहुंचे, जहां साबिक मेंबर कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक जज, चौधरी फयाज जफर और दीगर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। रात को शहरियों के आरेवाला में भी उसातिज़ा की जानिब से तालीमी बाइकॉट जारी है। सुबह स्कूलों में आने वाले तलबा को वापस घर भेज दिया गया। तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। आने वाला तालीमी बाइकॉट जारी, स्कूल के तलबा को वापस घर भेज दिया गया। बच्चों की तालीम का ज़िया हो रहा है, आला हुकाम नोटिस ले। उसातिज़ा का कहना है कि हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों की बदौलत सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। राना मजहर इकबाल ने हड़ताल में लाहौर जाने से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगीगा पंजाब टीचर यूनियन के प्लेटफॉर्म से हम आज एहतजाज कर रहे हैं। हमारे स्कूलों को, हमारे असातिज़ा को
हुकूमत से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे जो अदारे गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी लीव इनकैशमेंट में तब्दीलियाँ की गई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुलाजम का नुकसान होता जा रहा है। उसके बाद पेंशन रूल्स में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, फैमिली पेंशन को ख़त्म किया जा रहा है। AEOs और SSCs जो हैं वो 2014 से बड़ी मेहनत से, बहुत मुशक्कत से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा। पे प्रोटेक्शन का मसला 2000 से चला आ रहा है, 24-23 साल हो चुके हैं इस बात को, और सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ चुका है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर अमल करने को तैयार नहीं। हम इन तमाम बातों के खिलाफ बतौर एहतजाज अपने स्कूलों को बंद किया है, और आज हम लाहौर में तारीखी धरना देंगे अपने मुतालबात के मनवाने तक। हम वहाँ पर ही लाहौर में रहेंगे। लाखों की तादाद में असातिज़ा और दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं वो लाहौर में जमा हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा हक है। 76 साल हो चुके पाकिस्तान को बने हुए, वो कानून किसी असम्बली ने नहीं तोड़ा, ना किसी असम्बली से पास हुआ, और आज ये कानून जो है वो फर्द वाहिद जो है इसको पास करके तमाम मुलाजमीन का मुआशी कत्ल कर रहा है। साजा की जानिब से इस हड़ताल से तलबा का नुकसान हो रहा है, जो कौम का नुकसान है और कौम के मुस्तकबिल का नुकसान है। हुकूमत को चाहिए कि वो उस साजा के मुतालबात पर गौर करे। रज़ा ज़ैदी, कोहिनूर टीवी। पंजाब भर की तरह गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल म्याणी में भी टीचर्स की तरफ से निजकारी, पेंशन और दीगर अलाउंसेस में कटौती और तलीम कश पॉलिसियों के खिलाफ हड़ताल जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल बर्दवाना वहां पर मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इकबाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल म्यानी में मौजूद हूँ। पंजाब भर की तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल म्यानी में भी जो है निजकारी और पेंशन रूल्स में तरमीम के सिलसिले में एहतजाज जारी है। अगर बात की जाए तो साज़ा कराम की ये ऐसा शोबा है जिसके बारे में आपसे सल्लम ने फरमाया कि मुझे दुनिया में मुअल्लम बनाकर भेजा गया है। अगर मुअल्लम को भी रुसवा किया जाए तो इस बारे में मज़ीद तफसील जानते हैं। मेरे साथ टीचर यूनियन के जो है वो सदर मौजूद है म्यानी के, उनसे जानते हैं क्या पॉलिसीज है और किस सिलसिले में हड़ताल जारी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ऐसे ज़ालमाना कानून जो है बनाया है जिनसे मुलाजमीन जो है वो सख्त परेशान है, और पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो दरम बरम हो चुका है। मुलाजमीन के साथ इतनी ज्यादती किसी और सूबे में नहीं हो रही है। एक ही पाकिस्तान में दो किस्म के कानून बनाए जा रहे हैं, बाकी सूबों में कुछ और कानून है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्पेशल मुलाजमीन के साथ ज्यादती करते हुए पेंशन रूल्स में भी तब्दीली कर दी है, और इस तरह स्कूलों को निजकारी के सिलसिले में जो है वो चाहते हैं कि निजकारी की जाए। तो ये अवाम के साथ भी एक जुल्म है कि गरीब अवाम जो है वो हमारी कैसे इतनी फीसें अदा कर सकेगी, और मुलाजमीन के साथ भी जुल्म है कि उनके साथ जो इतने साल सर्विस करने के बाद उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम जो है इंशाअल्लाह अपने मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज करेंगे, तालीमी बाइकाट करेंगे और अपने मुतालबात मनवा के छोड़ेंगे। तो इसमें जो मेन हमारे मसाइल हैं वो लीव इनकैशमेंट का जो इन्होंने रूल बनाया है वो गलत बनाया है, वो इनको ख़त्म करना चाहिए। ये मुलाजमीन का हक है, ये उनको मिलना चाहिए। इस तरह जो निजकारी का कह रहे हैं ये एक जुल्म है अवाम के साथ भी। हमारी गरीब अवाम वो फीसें कैसे अदा कर सकी। प्राइवेट पहले जो महकमे हो चुके हैं उन्होंने जो जुल्म कर रखे हैं वो आप सबके सामने है। तो ये आपको भी हमारा साथ देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए। अर्ज हुकूमत आई है, मेहमान हुकूमत है, केयर टेकर के तौर पर उनको चाहिए कि इन जालमाना जो कानून बनाए गए उनसे ये अवाम को परेशान ना करें, बल्कि अवाम को रिलीफ दें, ताकि जो हमारे तालीमी निज़ाम है वो बेहतर से बेहतर हो सके और उस्ताद कुराम जो है वो अपना जो उनके ज़िम्मे अहम तरीन फ़र्ज है वो अच्छे तरीके से निभा सकें। जी, जिस तरह मेरे साथ ये टीचर यूनियन से मौजूद थे, उनका कहना है कि हुकूमत को ऑनलाइन फेसबुक एड्स और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए मसाज सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलाने वाले गैंग पर पुलिस का छापा, 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मुल्तान कमर जहां से। जी कमर, पुलिस की जानिब से किस तरह गिरफ्तार किया गया इन मुल्जिमान को, आगाह कीजिएगा।
جی ملتان پولیس نے چوک کمارا والا کے قریب جو ہے مساج سینٹر کی آڑ میں جاری مساج فروشی کے دھندے کے اوپر جو ہے وہ سینٹر پر چھاپا مارا ہے، جہاں پر جو ہے وہ 3 خواتین اور 4 ملزمان سمیت کل 7 ملزمان کو قابل جو ہے اعتراض حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس مساج سینٹر کے حوالے سے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ فیس بک ایڈز اور دیگر کمپینز سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کے ذریعے جو ہے مساج سینٹر کی تشہیر کر کے نوجوانوں کو اس گھنونے کاروبار کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ جو ملزمان کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ان میں عظما، ظہیر، ارشد، امبر، یونس، شیر علی اور نمرہ جو ہے وہ شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے جسم فروشی کے دھندے سے کمائی جانے والی جو رقم تھی وہ بھی برآمد کر لی گئی ہے، اور گرفتار ملزمان کے خلاف جو ہے وہ تھانہ نیو ملتان میں مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ قمر جہاں آگاہ کرنے کے لیے۔ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ کے ذریعے انتظام یتیم بچوں کی کفالت کے لیے قائم دوسرے عالی الشان اور جدید ترین کمپلیکس کا افتتاح ثوابی میں ہو گیا ہے۔ کوٹ کے 18ویں یوم تاسیس اور دوسری کمپلیکس کی افتتاحی تقریب 2005 کے زلزلے کی 18ویں برسی کے موقع پر ثوابی میں منعقد ہوئی، جس میں اعلیٰ عسکری و سول شخصیات نے بھی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں سید عمر گردیزی کی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات میں قیامت خیز زلزلے کے بعد برطانیہ میں مقیم کشمیری نژاد بزنس مین چودھری محمد اختر نے انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے ایک پناہگاہ قائم کی، جسے بعد میں کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کا درجہ دیا گیا، جو ہر سال 8 اکتوبر کو ان یتیم اور بے سہارا بچوں کے والدین کی یاد میں تقریب کا انعقاد کرتا ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع میرپور میں چودھری اختر نے کوٹ کے نام سے ان مستحق بچوں کو اعلیٰ تعلیم مہیا کرنے کے لیے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی، جس کی کامیابی کے بعد اس سال انہوں نے خیبر پختونخوا کے علاقہ عالم آباد ثوابی میں بھی دوسری برانچ کا آغاز کر دیا ہے، جہاں سینکڑوں یتیم بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے۔ عالم آباد ویلفیئر ٹاؤن ثوابی میں کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کا یہ کوٹ ایجوکیشنل کمپلیکس تقریباً 1000 یتیم بچوں کی کفالت اور اعلیٰ تعلیم کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز کوٹ کی جانب سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق ایئر چیف مارشل سہیل امان، لیفٹیننٹ جنرل جوہر، صوبائی وزیر اطلاعات و سیاحت خیبر پختونخوا بیرسٹر فروز جمال شاہ کاکا خیل، ایئر کموڈور شبیر احمد خان، چیئرمین محی الدین اسلامک یونیورسٹی سلطان شمس العارفین، لاہور قلندر کے مالک عاطف رانا، وزیر حکومت آزاد کشمیر انصر عبدالی سمیت اوورسیز کمیونٹی اور ڈونرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں شہدائے زلزلہ، شہدائے پاک فوج اور شہدائے کشمیر کو مخصوص انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے صوبائی وزیر سیاحت اور کلچر بیرسٹر فروز جمال کاکا خیل اور بانی چیئرمین کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ نے کہا کہ یتیم بچوں کی کفالت کا راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ ان کے بھرپور ان کے ساتھ کاندھا کاندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ آج یہ جو افتتاح ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا یہ ایک آئیکن بن چکا ہے، اور میں چاہوں گا جتنے بھی آپ کے دیکھنے اور سننے والے ہیں ضرور آئیں۔ کوٹ میرا نہیں ہے، کوٹ آپ کا ہے، کوٹ کی اونرشپ لیں، کوٹ کو ہم نے مل کر چلانا ہے۔ یہ جو بچے ہیں، جتنے بچے ہیں، یہ قوم کے بچے ہیں، یہی بچے آگر آ کر ہمارا اثاثہ بنے۔ ثوابی میں انہوں نے یہ کھولا ہے، اور صرف یہ نہیں، یہاں پہ اسکول ہے، ہسپتال ہے، اور دیگر جو ہیں انہوں نے جو بچوں کے لیے سہولیات فراہم کر رہے ہیں، تو میں خراج تحسین ان کو پیش کرتا ہوں، اور جتنا ہماری حکومت ان کے ساتھ تعاون کر سکے، جتنا ہم ابھی ان کی روڈز ہیں، باقی معاملات ہیں، ان کو میں نے خود ابھی ٹیک اپ کیا ہے انشاءاللہ، اور جتنی بھی ہم ان کو سہولت دے سکے وہ ہم دیں گے۔ مستقبل میں ملک بھر میں یتیم اور مستحق بچوں کے لیے ایسے اداروں کے قیام کو عمل میں لایا جائے گا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں بھی۔ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کے قیام کی بدولت ہزاروں یتیم بچے اعلیٰ زیور تعلیم سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے ابو جان چودھری محمد اختر اور ان کی اہلیہ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عمر گردیزی۔ گجرات میں مسلم لیگ نون نے NH51 سے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈویژنل صدر چودھری عابد رضا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ NH51 گجرات سے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری علی ملا بڑائچ ہوں گے، جبکہ صوبائی حلقہ 32 نشست منگووال پر چودھری رضا متا امیدوار ہوں گے۔ شہر کی صوبائی نشست پر حاجی ناصر مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 21 اکتوبر کو مسلم لیگ نون لیگ اپنے قائد میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے گجرات سے ہزاروں کارکنان استقبال کے لیے لاہور روانہ ہوں گے۔ گجرات میں اگر کاف لیگ فنڈز لگا رہی ہے تو وزیر اعلیٰ ان کا عزیز ہے۔
کہا کہ میں نے یہ پریس کانفرنس اپنی لیڈرشپ کے کہنے پر کی ہے اور پینل کا اعلان کیا. مسلم لیگ کاف سمیت کسی سیاسی پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا امکان نہیں. جو مسلم لیگ نون میں آئے گا اس سے بات ہو سکتی ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا 54واں سینکڈکٹ اجلاس کی صدارت وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے کی. اس موقع پر جسٹس شہرام سرور چودھری، ممبر پبلک سروس کمیشن ڈاکٹر پرویز احمد خان، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر خالد محمود، وائس چانسلر شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی پروفیسر تنویر احمد خالق، سابق صدر بینک آف پنجاب ہومیش خان، ایڈیشنل سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن شاہدہ فرخ، ڈپٹی سیکرٹری فائنانس طیب حیات، پرو وائس چانسلر پروفیسر اعجاز حسین، سی ای او میو ہسپتال پروفیسر محمد ہارون حامد، دین پروفیسر سائرہ افضل، پروفیسر نقشب چودھری، پروفیسر ابرار اشرف، یونیورسٹی سے ملحقہ اسپتالوں کے ایم ایس نے بھی شرکت کی. وائس چانسلر نے یونیورسٹی میں جاری اور تکمیل شدہ منصوبہ جات پر روشنی ڈالی. اجلاس میں نئے تعینات ہونے والے رجسٹرار کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر سید اصغر نقی کو بھی خوش آمدید کہا گیا. وائس چانسلر نے شرکا کو یونیورسٹی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے جاری پروجیکٹ پر روشنی بھی ڈالی. اجلاس میں بائیو بینک کے قیام، جبکہ شعبہ ریڈیولوجی، شعبہ کارڈیولوجی اور شعبہ پیتھولوجی کے چیئرمین کی تعیناتی کی منظوری بھی دی گئی ہے. پروفیسر محمود ایاز نے اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کے بارے میں شرکا کو آگاہ کیا. اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی ذاتی کاوشوں سے اسٹوڈنٹس ریڈنگ روم اور کیفیٹیریا کے قیام کو بھی سراہا گیا. سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژنز کی کارکردگی کا مشترکہ جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس میں ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے شرکت کی، جبکہ ایس ایس پی علی رضا، ایس ایس پی انوش مسعود چودھری بھی اجلاس کا حصہ تھے. اجلاس میں زیر التواء روڈ سرٹیفکیٹ، زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ عادی مجرمان، عدالتی مفرور ملزمان و اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. سربراہ لاہور پولیس کی تمام پینڈنگ کیسز اور روڈ سرٹیفکیٹس جلد سے جلد نپٹانے کی ہدایات، موٹر سائیکل چوروں اور موبائل سنیچرز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم دیتے ہوئے متعدد ایس ایچ اوز کی سرزنش بھی کی گئی. سی سی پی او لاہور کا کہنا تھا کہ وارداتوں کی تعداد زیادہ مگر ریکوری کم ہے، اس کو بہتر کیا جائے، منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن تیز کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے میٹرو بس سروس اور اسپیڈو بس سروس کے کرایوں میں 15% اضافے کی سمری مسترد کر دی ہے. پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے اجلاس میں کرایوں میں اضافے کی سمری پیش کی گئی تھی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ سے، جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی عاصم، بتائیے گا. جی، مسافروں کی سہولت کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ایک اور عوام دوست فیصلہ کیا ہے. پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے اجلاس میں اسپیڈو بس سروس اور میٹرو بس سروس کے کرایوں میں 15% اضافے کی پیش کی گئی سمری مسترد کر دی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ریونیو میں اضافے کے لیے نئے اور منفرد انداز سے کام کیا جائے گا. سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جوید قاضی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی تقریباً 1.25 ارب مسافروں کا ہدف عبور کر چکی ہے. طلبہ کے لیے شروع کی گئی مفت سفری سہولیات سے روزانہ 25,000 طلبہ و طالبات مفت سفر کر رہے ہیں. پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی 6 بس سروس سسٹم اپریٹ کر رہی ہے، جس سے مسافروں کو بہترین سفری سہولیات میسر آ رہی ہیں. پی ایم اے کو حکومت پاکستان کی طرف سے ڈیولپمنٹ لیڈرشپ کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ریلوے اسٹیشن کا گرین ٹاؤن الیکٹرک بس چلانے کی بھی عصوری منظوری دے دی ہے. ورلڈ بینک کے تعاون سے لاہور میں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت 27 الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ نے لاہور میں میٹرو بس ٹریک کی تعمیر و مرمت، قذافی اسٹیڈیم اور شہدرہ اسٹیشن کی تزئین و آرائش کی بھی منظوری دے دی ہے. اجلاس میں ڈیزل ہائیبریڈ بسیں چلانے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا ہے. میں بتاتا چلوں کہ اجلاس میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جوید قاضی، چیف ایگزیکٹو افیسر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی فائق احمد، نگران وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد، ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے افسران، خواجہ سکندر ذیشان سیکرٹری فنانس سمیت دیگر افسران بھی شریک تھے. جی بہت شکریہ عاصم راجہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.
एमडी वासा गुफरान अहमद बारिश के साथ ही मुतहरिक हो गए। शहर भर का दौरा करते हुए एमडी वासा ने निकासी आब ऑपरेशन का जायजा भी लिया। गुफरान अहमद ने कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास, लिबर्टी चौक, कलमा चौक अंडरपास का दौरा किया। मरकजी शाहराहों को फिल फॉर क्लियर करने की हिदायत भी कर दी। एमडी वासा का कहना था कि कहाँ कि तमाम डिस्पोजल स्टेशन को फुल कैपेसिटी पर चलाया जा रहा है। बिजली की बंदिश वाले इलाकों में डिस्पोजल स्टेशन को जनरेटर्स पर चलाया जा रहा है। अब तक सबसे ज्यादा बारिश 43 मिलीलीटर लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया याकूब की सरपरस्ती में पंजाब सोशल सिक्योरिटी की नादहिंदगान के खिलाफ तारीखी मुहिम जारी है। सोशल सिक्योरिटी की तारीख में पहली बार अरसा दराज से सोशल सिक्योरिटी नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। वाजिबात की वसूली के लिए तश्कील करदा खसूसी टीमें इन एक्शन है। पंजाब भर में कायम 22 डायरेक्टोरेट्स ने नादहिंदगान से 272.7 मिलियन रुपए वसूल कर लिए हैं। पंजाब भर में 1268 यूनिट से वाजिबात वसूल किए गए हैं। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले मुतल्लिका अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। नादहिंदगान से रिकवरी में मजीद तेजी लाने की भी हिदायत की है। बासिलसिला सालाना खत्म पाक सूफी मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी उल फजल कालूनी दरोगावाला में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। पीर तरीकत मोहम्मद जफर इकबाल, आबिद शाह, सज्जादा नशीन, दरबार शाह लसानी अलीपुर, सईदा शरीफ की जेर सदारत महफिल मिलाद में मुजफ्फर हुसैन शाह कादरी ने खसूसी खिताब भी किया। कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी ने तिलावत कलाम पाक से महफिल का आगाज किया। मारूफ नात ख्वां अवैस रजा कादरी ने खसूसी नात पेश की। हाफिज नूर सुल्तान सदीकी ने भी नात शरीफ पढ़ी। साहबजादा पीर सैयद अली हुसैन शाह की जेर सरपरस्ती मुनक्किद महफिल मिलाद में मुनीर हुसैन नक्शबंदी ने नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में गुलहाए पेश किए। सालाना खत्म में सगीर अहमद नक्शबंदी, मोहम्मद फखर अलवी और मोहम्मद फैसल नक्शबंदी समेत इलाका मकीनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल पाक के इख्तिताम पर नक्श लसानी इलेक्ट्रॉनिक्स पर लंगर का वसी इंतजाम भी किया गया था। खबरें और भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग ने ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और जवानों के नाम पैगाम देते हुए कहा कि आप तमाम अफसरान पंजाब पुलिस का रोशन चेहरा और मेरा फख्र है। अल्लाह ताला ने आपको मुल्क कौम की खिदमत का मौका दिया है, इसका हक अदा करें। पुलिस में काबिल और मेहनती पुलिस अफसरान को कदर की निगाह से देखा जाता है। दौरानी ड्यूटी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, यही चीजें इज्जत में इजाफे का बायस बनती हैं। अपनी ड्यूटी को कानून के मुताबिक अच्छे तरीके और नेक नीयती से सर अंजाम दें। मेहनत, दयानतदारी, रिस्क हलाल और काम से मेहनत को, मोहब्बत को अपना शार बनाएं। हर किस्म कोई तफरीक और तासुब से बालातर कानून की यकसा नफाज को यकीनी बनाएं। सोई गैस चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गैस चोरी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कहना के इलाके से 400 फीट लंबी जाली गैस पाइपलाइन पकड़कर मुनक़ता कर दी गई। महकमे के रिकॉर्ड में पाइपलाइन मौजूद न थी। महकमे की जानिब से जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाने की गर्ज से इस्तगासा भी दायर कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर बासित अली से। जी बासित, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर रीजन गैस ऑफिस की जानिब से गैस चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। इसी हवाले से कानानू के इलाके में 400 फुट तवील फेक पाइपलाइन जो है वो मुनक़ता कर दी गई है और गैस चोरों ने 1.25 इंच कतर का फेक नेटवर्क डाल रखा था, जिसको मेन लाइन से मिलाकर वसी पैमाने पर गैस चोरी करने का मंसूबा था, जो कि बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया गया है। खुफिया इतला पर जनरल मैनेजर बिलाल अस्कर की खुसूसी हिदायत पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अली अहमद की टीमों ने मौका पर छापा मारा तो फेक नेटवर्क पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, जो कि महकमा की जानिब से खुदाई करते हुए तमाम जाली नेटवर्क कब्जे में ले लिया गया है और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में गैस चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की गर्ज से इस्तगासा भी दायर कर दिया गया है। जी
बहुत शुक्रिया बासित अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। रात होने वाली बारिश के दौरान एमडी वासा शहर भर के दौरे करते रहे। एमडी वासा ने लक्ष्मी चौक का दौरा किया, जहां डायरेक्टर हामिद लाल ने उन्हें ब्रीफिंग दी। दूसरी जानिब वासा इंतजामिया ने कल रात होने वाली बारिश का रिकॉर्ड भी जारी कर दिया। जेल रोड पर 5 मिलीमीटर, एयरपोर्ट 10 मिलीमीटर, हेड ऑफिस गुलबर्ग 21, लक्ष्मी चौक 58, अपर मॉल 20, मुगलपुरा 41, ताजपुरा में 47, नश्त टाउन 5, नाअखज 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पानी वाला तालाब 24, फर्रुखाबाद 9, गुलशन रावी 43, इकबाल टाउन 18, समनाबाद 13, जौहर टाउन 2, जबकि कुर्तबा चौक में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बेशतर इलाके बारिश के साथ ही क्लियर कर दिए गए हैं। एसपी सिटी ऑपरेशन सुलेमान जफर की हिदायत पर सिटी डिवीजन के एसएचओ का मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाइयों में एसएचओ रावी रोड, शफीकाबाद, शादरा टाउन, मिसरी शाह, शादबाग, बदामी बाग, इस्लामपुरा, न्यू अनारकली, लोहारी गेट और लोअर माल पुलिस ने भी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। आपको बताएं कि एसपी सिटी ऑपरेशन सुलेमान जफर की हिदायत पर सिटी डिवीजन के एसएचओ का मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाइयों में एसएचओ रावी रोड, शफीकाबाद, शादरा टाउन, मिसरी शाह, शादबाग, बादामी बाग, इस्लामपुरा, न्यू अनारकली, लोहारी गेट और लोअर माल पुलिस ने कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेरे सदारत पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज की कारकर्दगी के जायजा इजलास में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज बहावल नगर की टीम ने गुज़श्ता 6 माह की कारकर्दगी के बारे में आईजी पंजाब को रिपोर्ट पेश की। आईजी पंजाब ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज बहावल नगर के इंचार्ज, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर और दीगर स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज ने नशे के आदी 4 अफराद का इलाज करवाया है। शहरियों को प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, जनरल वेरिफिकेशन और लीगल एड भी फराहम की गई है, जबकि 7 ट्रांसजेंडर अफराद को ब्यूटेशन कोर्सेज, 2 को बाइज्जत रोजगार, मुस्तहक बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबें फराहम की। माजूर अफराद को व्हील चेयर्स, खवातीन को सिलाई मशीन, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ट्रांसजेंडर अफराद की रजिस्ट्रेशन भी करवाई है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ बुग़ज़ और साजिशें बेनकाब हो गई। आईसीसी वर्ल्ड कप पैनल में शामिल पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास के भारत में थ्रेड और उनके खिलाफ चलने वाले बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर भारत छोड़कर दुबई पहुंच गई। मजीद तफसीलात जानते हैं कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे हमजा अब्बासी से। हाँ जी बिल्कुल, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश जो है वो बेनकाब हो गई है। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने जो है हिफाजती इक़दामात की बुनियाद पर भारत छोड़ दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने की तस्दीक कर दी है। आईसीसी तर्जुमान के मुताबिक ज़ैनब अब्बास ज़ाती वजूहात की वजह से भारत छोड़कर गई हैं, इन्हें डिपोर्ट करने की बात दुरुस्त नहीं है। इससे कबल प्रेजेंटर के करीबी ज़राए ने बताया था कि ज़ैनब अब्बास भारत से दुबई पहुंच गई हैं। करीबी ज़राए का बताना था कि ज़ैनब अब्बास पर भारत में बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने हिफाजती इक़दामात की बुनियाद पर भारत छोड़ दिया। प्रेजेंटर ने दोस्तों और फैमिली के मशवरे पर भारत छोड़ा है। वाज़ेह रहे कि भारत में ज़ैनब अब्बास के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। भारतीय वकील ने इल्जाम लगाया है कि ज़ैनब अब्बास ने सोशल मीडिया पर हिंदू मजहब और भारत के खिलाफ पोस्ट लगाई और हिंदू मजहब के खिलाफ पैगामात लिखे हैं। भारतीय वकील ने सोशल मीडिया तबसरों को ज़ैनब अब्बास से मंसूब देखकर इनका तबसरा करार दिया है। वकील ने पाकिस्तानी प्रेजेंटर के खिलाफ FIR काटने की दरख्वास्त भी दे दी है। भारतीय वकील ने जो है साइबर क्राइम पुलिस जो है उसको ज़ैनब अब्बास के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त दी है, जबकि ज़ैनब अब्बास के ज़राए का ये बताना है कि ज़ैनब अब्बास को वहां पर जान से मारने की धमकियां दी जाती, जिसकी वजह से उन्होंने हिफाजती इक़दामात जो हैं उसकी बुनियाद पर भारत छोड़कर दुबई रवाना हो चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया हमजा अब्बासी तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।